Today we will discuss world hunger and overview. ग्लोबल फूड इश्यूज भाई हमारा मेन कोर्स है जिसके अंदर आज हम हंगर के बारे में आप लोगों से बात करेंगे. सो द मेन objectives of the study include the students will be able to define hunger, hypothalamus, ghrelin, insulin and leptin. Three hormones will be discussed which are mainly associated with the hunger. We will also share some information related to the eating disorders, bulimia nervosa and anorexia nervosa. And some information will be shared related to the food security and food security related issues. Students will also be able to elaborate physiology of hunger. Either hunger is due to stomach or some psychological factors are also there. And what is the role of Atkins diet in weight management, working of hypothalamus, how it works, what are the theories, and ultimately hunger is controlled, control of food intake. Basically, these three hormones work like ghrelin, insulin, and leptin, and ultimately our food intake is controlled. What is the psychology of hunger? And what are the internal and external factors associated with psychology of hunger? Eating disorders, we will differentiate bulimia nervosa and anorexia nervosa. Lastly, we will discuss some causes of hunger and also what can be possible solutions. So all these things will be covered in today's lecture. So let's start from the definition of hunger. Hunger is basically feeling of discomfort, or you can say exhaustions or painful sensation caused by the lack of food. And most of the people have noticed hunger pains. अमूमन हम कहते हैं हमारे पेट में चूहे दौड़े हैं जब हमें भूख लगी हो. कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है. एग्जॉस्ट फील करना क्योंकि न्यूट्रिएंट हम खाते हैं और उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी को फ्यूल मिलता है और वही न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में यूटिलाइज भी होते हैं, ना सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट की शक्ल में बल्कि फूड के डाइजेशन में और इसके साथ साथ हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं. तो जब तक तो ये बैलेंस में होता है, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक एंड न्यूट्रिएंट्स का जो एग्जॉस्ट होना है वो आपको बैलेंस में नज़र आए, तो हमें हंगर फील नहीं होती. हंगर हम कब फील करते हैं? जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक उस रेशो से नहीं होता जिस रेशो से हमारी बॉडी यूटिलाइज कर रही होती है. Hunger can be physiological as well as psychological, and these things will be discussed in subsequent section. Regarding physiology of hunger, the famous study of Washburn has shown that hunger was partially related to the stomach. So it is not only the stomach which is responsible for hunger. So this outcome was as a result of numerous studies conducted in human as well as animals. So in case of human, subjects swallows balloon when measures stomach contraction or feel hunger pains. Subject presses key each time he feels hungry. तो एक सब्जेक्ट है जिसकी बॉडी में एक बलून जो है उसको इंसर्ट कर दिया गया और ये बलून जो है ये बेसिकली स्टोमक की जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है उसके साथ इसकी भी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो होती थी. और ये
स्केल की फॉर्म में इस तरह इंफोग्राम इसका जो है वो बन जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे इंडिविजुअल जो है वो हंगर क्रैम्प्स फील करता था, मे बी दिस वाज ड्यू टू द साइट ऑफ फूड, जैसे एक्सटर्नल्स यानी फूड किसी के सामने रख दी जाए फिर उस बंदे के लिए कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इनिशियली ये देखा गया कि जितनी बार हंगर क्रैम्प्स होते हैं उतनी बार ही जितनी बार वो स्टोमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता था उतनी बार ही हंगर जो है वो फील होती थी, जिसको यहाँ पे इंफोग्राम की बार फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। लेकिन सब्सिक्वेंट जो स्टडीज थी जिनमें एनिमल्स को यूज़ किया गया और एनिमल्स के स्टोमिक जो उनको रिमूव कर दिया गया और देखा गया कि इसके बावजूद दे वर इंटरेस्टेड इन ईटिंग, यानी स्टोमिक रिमूव करने के बावजूद एनिमल्स दे वर स्टिल फीलिंग हंग्री। सो इट इज समथिंग एल्स, समथिंग अदर देन स्टोमिक एज वेल, कि जो हंगर को कंट्रोल करता है। तो फिजियोलॉजिकली हंगर को स्टोमिक के साथ एसोसिएट किया गया। साइकोलॉजिकली हम देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हंगर को प्रमोट करने में या सप्रेस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। बॉडी की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो मेन कंपोनेंट है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन है, जिससे हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं वो बेसिकली, या गोश्त पोस्ट आप कह सकते हैं कि वो बना हुआ है, और हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें प्रोटीन बेस्ड हैं। इसके साथ साथ लेस देन 1% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी की कंपोजिशन है में शामिल है। लेकिन जब हम बॉडी के फ्यूल की बात करें तो चीफ सोर्स इज बेसिकली ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी and it is provided through various sources, either in the form of pure glucose or other monosugars, or in the form of disaccharides like lactose, sucrose, maltose. So either it is in the form of monosaccharides like glucose, lactose, or in the form of disaccharides, or in the form of polysaccharides like starch. All these are ultimately converted into glucose for utilization inside the body, and the process is known as glycolysis, the breakdown of glucose. And this happens in the presence of insulin, which helps in the metabolism of nutrients, especially glucose. And insulin is the hormone produced by the pancreas. When glucose levels drop in the body, hunger increases. So this is another mechanism. The body composition itself is controlling the hunger. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, तो ओवरऑल फिर वेट गेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और इसके बाद फिर वेट जब बढ़ जाएगा तो फिर डायबिटीज़, और इसके साथ साथ जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं लाइक सीवीडीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, वो भी बढ़ने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि हाई वेट जो है या ओबेसिटी जो है उसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है, ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज का इशू है। मोर देन 60% पॉपुलेशन इन यूरोप एंड वेस्टर्न वर्ल्ड is obese as well as overweight. So different type of strategies, different types of dietary managements are suggested to curtail the issues associated with weight gain. इस सिलसिले में एक वहाँ की पॉपुलर डाइट गिनी जाती है जिसका नाम डॉक्टर आटकिन डाइट है,
और आटकन डाइट जो है इसका अगर हम प्रीमाइज देखें, प्रीएम्बल देखें, तो वो बेस ही इसी चीज के ऊपर करती है कि ओबेसिटी इज basically the result of high insulin levels, and these high insulin levels are basically due to more consumption of carbohydrates. And if someone is successful in restricting carbohydrates, or you can say glycolysis, ultimately ketosis will be induced. Ketones body formation will be there. Or simply you can say your metabolism will be switched from carbohydrates towards the fat. So ultimately there will be weight loss and overall wellness. What are the health claims? Basically, Atkins diet is considered a low carbohydrate diet, and it produces rapid weight loss by sneaking calories out of the body unused, especially which are stored in adipose tissues, and will treat or prevent several health problems, including heart diseases, high blood pressure, diabetes, and chronic fatigue. How this diet plan can be utilized? Dr. Atkin has presented his diet revolution in the form of a pyramid known as Atkin's lifestyle food diet pyramid. So basically the theme is same as presented in the form of food diet pyramid by the USDA, but this is entirely different. And how it is different? Because in its base we can find protein rich sources like seafood, eggs, meat, soya products, and above these are vegetable sources, fruit sources. Then comes vegetable and seed oil sources, dairy products, nuts, legumes, olive, and less important is given to the whole grain products. They are kept at the apex, and this represents their less utilization. Although Atkin has suggested the whole grain products, but still as minimum as possible. So you can see this is totally the opposite of food guide pyramid presented by the USDA. And what are the messages? Limit and control certain carbohydrates to achieve and maintain a healthy weight. Though they have not asked to stop the utilization of carbohydrates, the message is they should be used to maintain a healthy weight or to achieve a healthy weight. And once we are going to choose the carbohydrates, we should first prefer carbohydrates from vegetables, carbohydrates from fruits, legumes, and lastly from the whole grains like cereals. Avoid refined carbohydrates and foods with added sugars. Eat until you are satisfied. And regarding satisfaction, there is a message for those which want to maintain weight. Eat in proportions to the pyramid. For maintenance of weight, our meal should consist of different food items from all these sections as per their proportions. And if someone is interested to lose weight, then focus on protein, leafy vegetables, and healthy oils. Because these protein and vegetable sources will provide more water and they contain less amounts of carbohydrates.
Everyone's metabolism and lifestyle is different. So discover your individual's carbohydrate level to achieve and maintain a healthy weight and raise this level with additional exercise. So इसकी अगर हम बात करें तो आजकल जो कीटो डाइट का ट्रेंड चल रहा है वो आपको इसके अंदर नजर आएगा। अच्छा, अभी हमने बात की है कि हंगर जो है वो सिर्फ स्टोमक की वजह से नहीं आती। इट इज नॉट द स्टोमक विच इज इन्वॉल्व इन हंगर, क्योंकि जिन एनिमल्स का स्टोमक रिमूव कर दिया गया एक्सपेरिमेंट्स में, स्टिल दे वर इंटरेस्टेड इन ईटिंग। सो इट इज बेसिकली comes from our brain. And then what part of brain has several components. You can see here they are reflected here with different colors, and here you can see the thalamus and hypothalamus. So basically in 1960 it was discovered that hunger comes from the hypothalamus, and it will describe when someone has to eat or when someone has achieved satiety. So basically, there are two different components involved in the hunger as well as satiety. Along the sides of hypothalamus is basically lateral hypothalamus, and this lateral hypothalamus basically brings the hunger. और ये कैसे हमें पता चला कि ये भाई हंगर को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है? कि लेटरल हाइपोथैलेमस को एनिमल स्टडीज के अंदर जब स्टिमुलेट किया गया, इवन उन एनिमल्स ने दोबारा खाना शुरू कर दिया जो कि पहले खा पी चुके थे, जो कि वेल फेड थे। लेकिन जब इस लेटरल हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया गया, उन्होंने मजीद खाना शुरू कर दिया। और जिन एनिमल्स के लेटरल हाइपोथैलेमस को किसी वजह से डैमेज कर दिया गया, लायंस प्रोवाइड कर दिए गए, तो फिर देखा गया कि इवन वो एनिमल जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया हुआ था, which were in starvation stage, even they were not interested in the food. तो असूली तौर पे तो उनको फूड जब सामने आनी थी तो फूड को खाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनका वो कंपोनेंट जो कि ब्रेन का वो हिस्सा जो कि हंगर को प्रमोट करता था, स्टिमुलेट करता था, उसको रिमूव कर दिया गया था, तो अल्टीमेटली दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग। इसी तरह दिमाग का एक और कंपोनेंट है भाई, हाइपोथैलेमस का एक और कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। ये देखा गया स्टडीज के अंदर कि ये वो कंपोनेंट है जो कि हंगर को डिप्रेस कर देता है। यानी इसको अगर हम इरिटेट करें तो इवन इंडिविजुअल जो खाने पीने वाला होगा वो डिप्रेस हो जाएगा, उसकी हंगर डिप्रेस हो जाएगी। तो ये हमें कैसे पता चला? बाय स्टिमुलेटिंग द वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस द एनिमल विल स्टॉप ईटिंग, एंड बाय लाइन the ventromedial hypothalamus of the animal, it will continuously want to eat. यानी जब इस हिस्से को ही अगर डैमेज कर दिया जाए तो एनिमल्स की हंगर डिप्रेस होने वाली सेंस खत्म हो जाएगी और वो कंटिन्यूली जो है ना वो खाता रहेगा। इसका मतलब है कि जो हंगर है ये ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है, और हाइपोथैलेमस में फिर उसका जो लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस, ये बेसिकली हंगर को कंट्रोल करते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस वर्क कैसे करता है, इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। एक को हम कहते हैं सेट पॉइंट थ्योरी और दूसरी कहलाती है लेप्टन थ्योरी। तो लेप्टन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हार्मोन है जो कि
एडिपोज टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं और इसकी प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फैट कंटेंट के। तो जितना ज़्यादा फैट कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा लेप्टन होगा, और जितनी ज़्यादा लेप्टन की प्रोडक्शन होगी और हाइपोथैलेमस उसको सेंस कर लेगा, तो अल्टीमेटली मैसेजेस सेंड किए जाएंगे इंडिविजुअल की बॉडी को कि वो खाना पीना छोड़ दे। कर्ब ईटिंग, नंबर 1 खाना पीना रोक दे। नंबर 2 इंक्रीज द एक्टिविटी। एक्टिविटी इंक्रीज करने का मकसद भी क्या है कि जो खाया पिया है उसको यूटिलाइज किया जा सके। सेकंड थ्योरी जो है इसको सेट पॉइंट का नाम दिया गया है, और सेट पॉइंट बिल्कुल एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जैसे आप घरों में इस्त्री के अंदर देखते हैं ना, एक थर्मोस्टेट एग्जिस्ट करता है, और एक खास टेम्परेचर अचीव करने के बाद इस्त्री जो है वो ट्रिप कर जाती है, और जैसे ही उसका टेम्परेचर जो है वो एक खास जोन से कम होता है, जो कि हमने जब कपड़े प्रेस किए हैं तो अल्टीमेटली वो ठंडा होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही उसका टेम्परेचर एक खास लेवल से कम होगा, थर्मोस्टेट दोबारा जो है वो बिजली का सिग्नल ऑन कर देगी और हीटिंग एलिमेंट्स दोबारा जो है इन फंक्शन हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारी बॉडी भी ऐसे ही है। जब हम वेल फेड कंडीशन में होते हैं, जब हमने खाया पिया होता है, तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी जो है वो एक सेट पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, थर्मोस्टेट की तरह वो एक खास लेवल को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सो वी आर मेंट टू बी इन अ सर्टेन वेट रेंज। अब उस वेट रेंज से जैसे ही हमारा वेट कम होता है, क्योंकि जो हमने खाया पिया था वो यूटिलाइज हो रहा है बॉडी के अंदर, वो मेटाबलाइज हो रहा है, और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जैसे ही हमारा वेट एक खास रेंज से कम होता है, अल्टीमेटली दो मैकेनिज्म्स होंगे। नंबर 1, सिग्नल्स भेजे जाएंगे बॉडी को कि वो एनर्जी के एक्सपेंडिचर्स को कम कर दे। सिग्नल्स भेजने का मकसद क्या है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिजर्व किया जा सके। और इसके साथ साथ दूसरा मैसेज क्या जाएगा कि हंगर को प्रमोट किया जाएगा, और जब हंगर फील करेंगे तो अल्टीमेटली फिर हम खाने की तलाश में निकल पड़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली these are two theories on which hypothalamus function is based. So we call them, how does the hypothalamus works? Next question comes, how food intake is controlled in the body? क्योंकि इनटेक और एक्सपेंडिचर्स जब तक बैलेंस में रहेंगे, हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में रहेगी, एंड वी कॉल इट एनर्जी बैलेंस। अब एनर्जी बैलेंस कब डिस्टर्ब होता है? कि जब इनटेक एक खास अरसा के लिए रोक लिया जाए, और एक्सपेंडिचर्स जो है वो बीएमआर की शक्ल में, और फूड की डाइजेशन की शक्ल में, और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की शक्ल में बॉडी से एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर्स उसके हो रहे हैं। और अब हु विल डिक्टेट कि भाई एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं तो अब इनटेक करना चाहिए? इसमें 3 हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। एडिपोज टिश्यूज लेप्टन प्रोड्यूस करते हैं, अगेन हाइपोथैलेमस इसको सेंस करता है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियास, and ghrelin which is produced by the digestive system, GIT tract, and mainly stomach is involved. अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो जिरेलिन की अगर हम बात करें तो इसको हंगर हार्मोन का भी नाम दिया जाता है। हंगर हार्मोन बेसिकली क्या होता है कि जब स्टोमिक एम्प्टी होगा, और एम्प्टी कब होता है? जब हमने खाया पिया नहीं होता,
then ghrelin is secreted, and when the stomach is stretched कब होता है कि जब हम अच्छा खासा खा पी लेते हैं, then its secretion stops. So ghrelin is known as hunger hormone. Its production will continue until hunger is there. It acts on hypothalamic brain cells both to increase hunger and to increase gastric acid secretions and the gastrointestinal motility to prepare the body for the food intake. हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमिक ब्रेन सेल्स जो हैं ये हंगर को प्रमोट करते हैं, और कैसे प्रमोट करते हैं कि ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को एनहांस कर देते हैं, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है बाज़ दफ़ा किसी प्लेयरेबल और पैलेटेबल फूड या फेवरेट फूड का नाम सुन के, और इसके साथ साथ जब उस फूड को एक्चुअली खाया जाता है, जब वो हिट करती है स्टोमिक वाल्स को जाके। अब इन सिक्रीशंस को बढ़ाने का मकसद क्या है? तो मैदे को तैयार किया जा रहा है कि फूड जो आने वाली है उसको डाइजेस्ट किया जाए ताकि हंगर खत्म हो। और इसी तरह दूसरा फंक्शन जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी को इंक्रीज करना, ताकि फूड की मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। सेकंड कम्स लेप्टिन. It is also known as satiety hormone. This is opposite to the ghrelin, and this hormone is also made of peptides, and especially in the adipose tissues, that helps to regulate energy balance by inhibiting hunger. अगर हंगर को इस स्टेज पे इनहिबिट ना किया जाए, satiety को अचीव करने का सिग्नल ना दिया जाए, तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल ओवर ईटिंग की वजह से ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ रागब हो जाएगा। So leptin is opposed by the action of hormone ghrelin, which is known as hunger hormone. Both hormones act on receptors in the hypothalamus to regulate appetite and achieve energy homeostasis. In obesity, a decreased sensitivity to leptin occurs, resulting in an ability to detect satiety, and ultimately there will be more utilization of energy, and more energy will be stored in the body in the form of adipose tissues. तीसरा हार्मोन जब इसको इंसुलिन का नाम दिया जाता है। Insulin basically produced by the islets of Langerhans of the pancreas, which regulate the metabolism of glucose and other nutrients by promoting the absorption of especially glucose from the blood into fat in the form of lipogenesis and in the form of glycogen in the liver and skeletal muscle cells. तो जब हम ग्लूकोज ही जरूरत से ज्यादा खा रहे होंगे तो ये ग्लाइकोजन की शक्ल में मसल्स और लिवर के अंदर एक खास क्वांटिटी में स्टोर होगा। इससे ज्यादा जो लेवल्स होंगे बियॉन्ड दैट लेवल, फिर लाइपोजेनेसिस एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा बॉडी में, जिसके थ्रू glucose will be converted into fat, and finally it will be deposited in the adipose tissues. So basically this glucose production or excessive glucose production by the liver is strongly inhibited by the high concentration of insulin in the blood. अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई ना हो तो अल्टीमेटली
ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है वो लिवर के अंदर जारी रहेगी। When glucose concentration in the blood is high, the pancreatic beta cells secrete insulin into the blood. When glucose levels are low, secretion of insulin is inhibited. फिर वो आपने एक नाम सुना होगा ग्लूकागॉन हार्मोन, वो अपना रोल प्ले करता है। तो इंसुलिन इज द हार्मोन ऑफ वेल फेड कंडीशन। ठीक है, और जब हम फास्टिंग वाली फेज में होंगे तो फिर ग्लूकागॉन जो है वो काम करेगा, और जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्पेशली मसल्स में और लिवर के अंदर स्टोर होती है उसको अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो ये भी 3 हार्मोन्स और इनके फंक्शंस हैं वो आपने याद रखने हैं। अब पहले तो हमने क्लेम किया था कि हंगर इज ड्यू टू फिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि हंगर इज आल्सो ड्यू टू साइकोलॉजी, और साइकोलॉजिकली कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जो हंगर को प्रमोट करते हैं। तो नंबर 1 एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल्स। एक्सटर्नल्स मींस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सपोजर टू द फूड। जितना ज्यादा किसी फूड एनवायरनमेंट का एक्सपोजर होगा उतनी ही ज्यादा फूड की यूटिलाइजेशन के चांसेस हैं। सो पीपल हुज ईटिंग इज ट्रिगर्ड मोर by the presence of food than the internal factors। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अगर किसी स्कूल में स्नैक्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हों तो स्नैक्स की यूटिलाइजेशन वहां पे ज्यादा होगी। इसी तरह टेस्ट प्रेफरेंसेस जो है ना वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। नॉर्मली जब हम भूखे होते हैं तो हमें फूड का जायका अच्छा लगता है, और फूड को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता च्यू करते हैं ताकि हम ज्यादा अरसे तक उससे प्लेयर ड्राइव कर सकें। एंड यूजुअली दिस हैपन्स एट द स्टार्ट ऑफ द मील। खाना खाए देर हो चुकी हो तो उस वक्त हमें अगर खाना मिले तो बेशक वो जायके में इतना अच्छा ना भी हो, even then it will taste better and we will chew with less, ultimately to increase the time span, because we want to enjoy this meal, we want to drive clear। और इसके मुकाबले में अगर आप खाना शाना खा के घर से निकले हैं और जिस जगह आप पहुंचे हैं वहां से भी आपको खाना ऑफर हो गया है तो बेशक वो खाना आपकी पसंद का होगा, the taste will be worse and we chew more। मुंह में घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, नवाला जाओ मुंह में घुमाए जाते हैं जब आपकी पसंद का वो ना पकाओ, और जब आपकी पसंद का खाना पकाओ तो फिर आप खाना च्यू कम करते हैं, एनगल्फ ज्यादा करते हैं। सो बेसिकली फूड टेस्ट वर्स एंड वी च्यू मोर when we are not hungry, and this happens usually at the end of the meal। Likewise, better the taste, the less time we leave it in our mouth। तीसरा फैक्टर जो है वो कल्चर एंड टेस्ट, ये भी शामिल है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कल्चर में गोश्त ज्यादा खाया जाता है या गोश्त को डिफरेंट शक्लों में खाया जाता है, तो एक कल्चर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे वेजिटेरियन ज्यादा पाए जाते हैं, वैगन ज्यादा पाए जाते हैं जो कि गोश्त को खाना पसंद नहीं करते। तो ये भी अल्टीमेटली वहाँ पे हंगर को अफेक्ट करेगा। तो आप ऐसे कल्चर में चले जाएं कि जो कल्चर आपको सूट नहीं करता तो आपकी हंगर जो है वो अफेक्ट होगी साइकोलॉजिकली। इसी तरह कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फर्स्ट वन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। जिन इंडिविजुअल्स को एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया वैसे कहते हैं भूख रखना, तो जिन इंडिविजुअल्स को एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रॉब्लम हो
तो इसमें वो नॉर्मल वेट पर्सन जो है वो भी डाइटिंग पे चला जाता है, एज्यूमिंग दैट उसका वेट बढ़ रहा है, उसके ऊपर फैट जो है वो चढ़ रही है, तो वो फिर इतनी सीवियर डाइटिंग करना शुरू कर देता है कि अल्टीमेटली उसकी बॉडी जो है वो हड्डियों का ढांचा रह जाती है, मस्कुलर मैस जो है उसका कम से कम होता जाता है। और फैट का जो एक बेसिक लेवल मेल और फीमेल की बॉडी पे चाहिए, जब वो भी नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उनका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। So in case of anorexia nervosa, this is an eating disorder in which normal weight person diets and becomes significantly underweight, yet still feeling fat and continues to starve. स्टारवेशन वाली फेज पे वो पहुंच चुका होता है। तो फूड की अवेलेबिलिटी इशू नहीं है इन लोगों के लिए, मे बी दे हैव द अवेलेबिलिटी एज वेल एज द एक्सेसिबिलिटी, लेकिन साइकोलॉजिकली जो है ना वो इसलिए नहीं खाते कि भैया वो मोटे होते जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अब ब्यूलिमिया नर्वोसा एक और ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें इंडिविजुअल्स जो है ना वो एपिसोड्स ऑफ ईटिंग में इन्वॉल्व होता है, सारा दिन चलता रहता है और इतनी ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है कि फिर उसको रियलाइज होता है कि वो ज्यादा वेट ना गेन कर ले। अब उस चक्कर से निजात हासिल करने के लिए वो ईटिंग वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, यानी हाथ डाल के बाज दफा इन लोगों का जो गला है वो रप्चर हो चुका होता है अंदर से, इतना सीवियर ये प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो सीरीज ऑफ एपिसोड्स चलती हैं, इधर से खा लिया टका के, फिर वॉमिटिंग इंड्यूस कर ली और वॉमिटिंग के साथ साथ लैक्सेटिव को ज्यादा यूज करते हैं ताकि डायरिया की शक्ल में, लूज मोशंस की शक्ल में ये बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकल जाएं। इसके अलावा बाज दफ़ा फास्टिंग जो है वो रखते हैं, यानी रोज़ा जो है वो लंबे अरसे के लिए रखेंगे और पर्पस क्या है, सिर्फ वेट को डाउन करना। और चौथी चीज़ जो है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज है, जिम जाना शुरू कर देंगे, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे ताकि किसी तरीके से उस वेट से निजात हासिल कर सकें जो कि उनकी बॉडी की शेप को, बॉडी को जो है वो डिस्टर्ब करने जा रहा है। तो ब्यूलिमिया नर्वोसा जो है वो भी ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल्स खाते भी हैं और बॉडी से फिर उसको एग्जॉस्ट भी कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग भी थिननेस की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह बॉडी इमेज या बॉडी का जो ओवरऑल इंप्रेशन है ये भी बड़ा मैटर करता है। एक खास फिजीक होती है जो हमें खुद भी अच्छी लगती है और एक फिजीक वो होती है जो हमें दूसरों की अच्छी लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल एक थिननेस और फैटेस्ट के स्केल पे अगर हम देखें तो बॉडी इमेज जो है वो बिल्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक खास लेवल पे वुमेन्स जो है वो समझती हैं कि उनका बॉडी वेट जो है वो आइडियल है और वो उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती, ना ज्यादा खा के ना कम खा के। फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है कि वुमेन एज्यूम करती है अगर उसका वेट एक खास लेवल पे होगा तो जो उसका जो अपोजिट सेक्स है वो उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। सो इट इज देयर बिलीफ। अब उस हिसाब से हो सकता है फिर वो ओवर ईटिंग करें और इसी चक्कर में मजीद जो है ना पता चलता है कि नहीं भाई मेन जो है ना वो वेट प्रेफर नहीं कर रहे, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फर्दर वेट गेन। अब उससे क्या होगा, मजीद वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, मजीद खाना पीना जो है वो शुरू हो जाएगा और एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पे वुमेन जो है